question number first, part number 4, same as part third. Do yourself. In fifth part, it is given that 1 plus 2 iota by में 1 minus into 1 minus iota का whole square. First of them, we write the form of complex number exact. So these 1 plus 2 iota as it is 1 minus. We open the whole square of this term. A minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. But this negative sign change the sign of all terms. 1 square, 1 minus iota square plus 2 iota. 1 cancel to 1. We get iota square is equal to minus 1. Then this becomes plus 1 plus 2 iota. Both are cancel equal to 1. So now z is equal to 1. यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म बनी 1 प्लस 0 आइटा. यहाँ रियल पार्ट है, इमेजिंग पार्ट हमारे पास नहीं है. नाउ वी राइट दी फॉर्म इज r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आइटा. तो नाउ मल्टीप्लाई r cos थीटा इज इक्वल टू 1, r sin थीटा इज इक्वल टू 0. स्क्वेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड एडिंग. तो नाउ r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर 1 प्लस 0 इट विद 1. Taking r square common out, r square into cos square plus sin square theta, these value equal to 1. So r square is equal to 1, so r is equal to 1. Now divide equation second. This equation second by first. We get r sin theta, r cos theta 0 by 1. Tan theta is equal to 0. Tan theta की कितने डिग्री पर वैल्यू 0 होती है? Tan theta is equal to 0. 0 डिग्री पर वैल्यू 0 होती है, तो थीटा की हमारे पास 0 आ गई. तो नाउ द फॉर्म ऑफ दिस r cos थीटा आइटा sin थीटा. r की वैल्यू 1, वी फाइंड दिस वैल्यू, एंड cos थीटा की वैल्यू 0 प्लस आइटा sin थीटा की वैल्यू 0. दिस इज द पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन. In second part, we have second question. We express the question in also the polar form. This is also the part of the part of first part, second part question, first, second. Now second question first part same as part first. Do yourself. Second part जो है, first part जो है second question की तरह solve करना है. We take second part of these questions. It is given that 1 minus 1 plus iota by 1 by 2 plus iota root 3 by 2. We put the value of, it is given that iota minus 1 by में cos pi by 3 plus iota sin pi by 3. We put the value of this cos pi by 3 and cos 60 degree 1 by 2 sin 60 root 3 by 2 and this form of this. Now we take 2 is common from this and take 2 numerator. This becomes 2 into minus 1 plus iota 1 plus root 3 iota. 2 multiply inside minus 2 plus 2 iota by way 1 plus 3 iota. Now iota in the denominator, then we rationalize the denominator. This becomes 1 minus root 3 iota, 1 minus root 3 iota. Now we multiply these term, both these minus 2 plus 2 root 3 iota, this multiply 2 iota minus 2 root 3 iota square. We put the value of iota square. Iota square is equal to minus 1, so this minus becomes positive, then this becomes 2 root 3 minus 2. This is real part, and imaginary part taking iota common out, 2 root 3 plus 2 iota by में 4. Now this is your modulus. This is the form of z. अभी ये z निचला हुआ है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म निचली हुई है. तो now r cos theta plus iota sin theta is equal to real part plus imaginary part. Now r cos theta, multiply r inside, r cos theta real part is 2 root 3 minus 2 by 4, r sin theta 2 root 3 plus 2 by 4. Squaring and adding equation first and second. Left hand side का square करेंगे, r square cos square r square sin square theta, r square common out this. और इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, इट मींस a माइनस b का होल स्क्वायर. a स्क्वायर 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 3 12, b स्क्वायर माइनस 2ab बाय में 4 स्क्वायर 16. ऐसे ही इसका स्क्वायर करेंगे 12 प्लस 4 प्लस 8 रूट 3 बाय में 16. हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 16, तो 16 माइनस 8 रूट 3, 16 प्लस 8 रूट 3, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 32 by 2 वी गेट
2, r square is equal to 2, तो r is equal to square root 2. This is the value of a modulus. Now डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट. इस सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करते हैं. तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है r sin थीटा r cos थीटा 2√3 बाई प्लस 2 बाई 4. इसकी वैल्यू इसका रेसिप्रोकल लेके जाएंगे 4 ऊपर 2√3 माइनस 2. 4 कैंसिल टू 4. नाउ वी टेक 2 कॉमन आउट फ्रॉम न्यूमरेटर, 2 फ्रॉम डिनोमिनेटर वी गेट √3 प्लस 1 √3 माइनस 1. Now we find the value of tan theta is equal to this value √3 plus 1 by √3 minus 1. So this is the value of tan 75 degree. Tan 75 may be written as tan 45 plus 30. हमें 75 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हम वैल्यू लिख सकते हैं tan 45 प्लस 30. इसको ऐसी वैल्यू के अंदर ब्रेकअप करें जिसकी दोनों वैल्यू आपको पता हो. Now this is the identity tan A plus B. Tan A plus B means tan A plus tan B 1 minus tan A और tan B. अब tan 45 की वैल्यू 1 √30, tan 30 की वैल्यू 1 by √3, 1 minus tan 45 1 और this is also 1 by √3. टेकिंग एलसीएम √3 plus 1 by square root 3. इसका भी एलसीएम लेंगे और रेसिप्रोकल लेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ गई. इससे ये कैंसिल हो गया. दिस इज √3 plus 1 by √3 minus 1. So then थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री. अब 75 डिग्री को हमने रेडियंस के अंदर चेंज किया, इसको 15 से कैंसिल कर लिया. दिस बिकेम 5/12. तो नाउ द फॉर्म ऑफ दिस इज r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा. r की वैल्यू हमने निकाली स्क्वायर रूट 2, cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली 5/12. ये निकाल रखी है आपकी वैल्यू, प्लस आइटा sin ये वैल्यू भी आएगी 5/12. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड. नाउ इन क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सप्रेस दिस क्वेश्चन इन द फॉलोअर फॉर्म. इस एक्सरसाइज के अंदर टोटली सभी क्वेश्चंस हमने पोलर फॉर्म और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म के अंदर ही लिख लिया और सभी का एक ही मेथड है इसमें. इट इज गिवन दैट sin 60 डिग्री प्लस आइटा cos 60 डिग्री. तो नाउ फर्स्ट ऑफ देम वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस एंड मेक द कॉम्प्लेक्स नंबर. sin 60 is √3/2, cos 60 is 1/2 आइटा. तो नाउ दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म इज r cos theta plus iota sin theta is equal to this number. Now from these two equations we compare the real and imaginary part. r cos theta is equal to √3/2, r sin theta is equal to 1/2. वही प्रोसीजर दोनों का स्क्वायर करके और ऐड करेंगे तो r स्क्वायर कॉमन हो गया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 बन गया. इसका स्क्वायर करते इस टर्म का √3/2 का स्क्वायर हो गया 3/4, 1/2 का स्क्वायर किया 1/4. ऐड करेंगे 4/4 वी गेट 1. r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो r इज इक्वल टू 1. डिवाइड इक्वेशन फिर वही नेक्स्ट स्टेप. डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट. सेकंड इक्वेशन ये रही r cos थीटा, फर्स्ट r sin थीटा cos थीटा 1/2. इसका रेसिप्रोकल लेके जाएंगे 2/√3. 2 कैंसिल टू 2 वी गेट 1/√3. तो देन tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3. tan थीटा की कितने डिग्री पर वैल्यू 1/√3 होती है तो वी गेट दिस वैल्यू इज 30 डिग्री. 30 डिग्री को हमने रेडियंस के अंदर चेंज किया. 30 मल्टीप्लाई में π/180. ये इससे कैंसिल हो गया, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू π/6. नाउ द फॉर्म ऑफ दिस वी पुट द वैल्यू ऑफ इन दिस फॉर्म. r की वैल्यू 1, cos थीटा की वैल्यू कितनी है π/6 प्लस आइटा sin थीटा की वैल्यू वही π/6. This is your question number first. Second question same as first part. Third part solve. 5/2 into cos 300 plus iota sin 30 डिग्री. यहां हमने इस 300 की वैल्यू निकालनी है. sin 30 तो हमें पता है, sin 30 की वैल्यू 1/2 तो सोल्व हो गया. अब इसको हम सोल्व करते हैं. दिस इज योर 4 क्वाड्रेंट. दिस इज 90, 0 से 90, 180, 270 और 360. ऐसे हम क्वाड्रेंट के अंदर चलते हैं तो मैं इसको ब्रेकअप करता हूं
270 प्लस 30 के अंदर 270 प्लस 30 कोस। जब भी 90 प्लस एक्स 90 माइनस एक्स 270 प्लस एक्स 270 माइनस एक्स आए तो ये चेंज हो जाता है इस क्वाड्रेंट के अंदर, साइन कोस के अंदर, कोस साइन के अंदर। तो देन दिस कोस चेंज टू साइन और वैल्यू आ गया आपके पास 30। तो साइन 30 डिग्री ये बन गया और साइन 30 पीछे वाला है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमने लिखी 1/2 प्लस 1/2 आयटा इज इक्वल टू आर कोस थीटा आयटा साइन थीटा मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। 5/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5/4 इज इक्वल टू रियल पार्ट, 5/4 इसके साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। वही स्क्वेयरिंग और एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 5/4 का स्क्वायर प्लस 5/4 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस बिकेम 50 बाय में 16 एलसीएम लेके जोड़ दिया आर स्क्वायर। अब इसका आर की वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट, 50 का स्क्वायर रूट फैक्टर बनाते हैं ऐसे 50 के। तो जब आप 50 के फैक्टर बनाते हैं तो आपके पास ये जो 5 है 2 टाइम्स आ गया तो 1 टाइम बाहर स्क्वायर रूट 2 और 16 का स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल टू आर। नाउ वी ब्रेक अप दिस 4 राइट 2 मल्टीप्लाई 2, हमने 4 को रखा है 2 मल्टीप्लाई 2। नाउ रैशनलाइजेशन ऑफ स्क्वायर रूट 2, देन दिस स्क्वायर रूट कैंसिल टू दिस एंड दिस बिकेम्स 5 बाय में 2 रूट 2 इज इक्वल टू आर। दिस इज द मॉडुलस ऑफ दिस मॉडुलस। नाउ डिवाइड वही प्रोसीजर, इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, आर साइन थीटा आर कोस थीटा 5/4 और दिस बिकेम 4/5 कैंसिल इक्वल टू 1। tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा की कितने tan थीटा कितने डिग्री पर वैल्यू 1 है 5/4 या 45 डिग्री। तो देन फॉर्म इज आर की वैल्यू ये आ गई कोस थीटा 5/4 प्लस आयटा साइन थीटा 5/4।